Thank you for waiting for such a long time, and now just because we are settled, I am pleased to welcome you all to another series of the modules undertaken under Personality Development Program running in our esteemed institution, Kanya Mahavidyalaya, the Heritage and Autonomous Institution. Started long ago, the program of personality development was offered as a choice-based program to the students, but gradually the importance of it has been realized, and it has been now included as a value-added program for the students of semester 3 in the college. This program and this workshop would not have been possible without the support and motivation of our esteemed Madam Principal, Dr. Mrs. Atima Sharma Dwivedi, who is an epitome of motherly love and fatherly confidence for the students. And in her absence, I am blessed to have amongst us Madam Madhumi, who has joined us, Madam Suman, for all their blessings and their support. Dear girls, this workshop shall delve into self-analysis, self-confidence and SWOT analysis. Self-analysis is a very introspective concept, and it can only be done if you really want to evaluate your strengths, your weaknesses, your goals. There always comes a time in the lives of people when you can hear them say that there was a turning point, their life took a U-turn. Have you heard people saying that their life took a U-turn? So what do you think? Who took a U-turn? What takes a U-turn? The life takes a U-turn, or it is you who turns? It is you who turns to realize your ambition, your talent, your goals, your potential. And to delve deeply in this topic, we have amongst us trained experts of the field. And as the coordinator of the program, I extend a warm welcome to our resource persons of today for the workshop, JC's Karandeep Gulati and JC Vinay sir. Thank you so much to ma'am, sir. And before I hand over the podium to them, because they are loaded with activities and they have a good plan for you today, I would like to request all my teachers, my colleagues, all teachers, to please come forward so that we can extend a floral welcome to them. That you are very good at, and 3 things you feel you are very bad at. 3 things means minimum 3 things. अगर किसी के पास 5 है, 10 है, वो लिख सकता है, लिख सकती है. Otherwise minimum 3. 3 चीजें जो आपकी बहुत अच्छी हैं, आपकी strengths हैं, and 3 चीजें जो आपकी weaknesses हैं. Very good. At my studies, I'm good at grooming myself and controlling my mind and emotions. I can control them very easily. Then the bad things are I'm lazy. I keep on postponing things and my anger. Okay. Thank you. And I'm dedicated. My weaknesses are I'm not patient and I'm a hearted person and I get easily bored. Your name please? Correct.
एक ना हिंदी में हम बोलते हैं, जिसने की शर्म उसके। आपको एक बार के लिए ये स्टेप है। देखो आपके कॉलेज ने एक वर्कशॉप अरेंज करी है, हम आए हैं स्पेशली। ये तो सेम चीजें आपको मैम भी बता सकते थे, बट हम क्यों आए हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और आउटर सोर्स आकर आपको मोटिवेट करे और आपका जो फियर है उसको बाहर निकाले। तो आपसे मुझे सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपने क्लैपिंग में मेरा साथ दिया, वैसे ही छोटा सा साथ क्या चाहिए, मुझे वो बच्चे चाहिए जो बच्चे बिल्कुल कहते हैं कि हम बोल नहीं सकते, हमें डर लगता है, हमें शर्म आती है, वो बच्चा पार्टिसिपेट करे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिलीव मी, वी विल नॉट जज यू। यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं लगने हैं, कुछ नहीं होना है। ओके? अच्छा, एक बात सच सच्ची बताना, पापा की परी कौन है यहाँ पे? बस थोड़ी सी है। और मैं अपनी फेवरेट हूं वाली कौन है? मैं अपनी फेवरेट हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं लगा। ओके, शेरनी कौन है यहाँ पे? तो शेरनी दहाड़ के ना दिखाओ फिर। हाँ जी, कोई और करेक्टर है इसका इसके अलावा जो मैंने मिस कर दिया हो? हाँ हाँ जी, क्या कहना चाहते हो बच्चे? नहीं? ठीक है। जिन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया उनका हाथ मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ जी, आओ जी, दिस रेड मास्क, ब्लैक मास्क, आओ आप पिंक सूट आ जाओ, मेरा फेवरेट कलर है पिंक। रणवीर विल स्टार्ट, शी विल गो इन द मिरर, वहां पे वो बात करेगी। आपने मुझे बाद में बताना है कि वो किस बारे में बात कर रही है, ठीक है? एंड लैंग्वेज इज नॉट अ कंसर्न। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तेलुगु, कोई भाषा बोल लो, डजंट मैटर, ठीक है? Pursuing my Bachelor's of Vocation in Animation at Kanya Mahavidyalaya, Jalandhar, and I am 18 years old, and my hobbies are to listen music in my leisure time, and traveling is one of my hobby also. I love to explore new things and new experiences in my life. इंट्रोडक्शन, व्हाट शी डिड? तो शीशे में करणवीर नहीं खड़े, शीशे में करणवीर का वो वर्जन खड़ा है जो कि उसको देख रहा है। तो करणवीर कैसे बात कर रही थी, आपने देखा? कैसा लगा आपको? कॉन्फिडेंट थी? पक्का? श्योर? चॉकलेट दे दे? बाद में मांगोगे तो नहीं उससे? नेक्स्ट आप। Good morning, sir. My name is Shireen and I am from Firozpur. I recently completed my schooling from St. Joseph's Convent School, Firozpur. Currently, I am pursuing my Bachelor's of Science in BSc Medical from Kanya Mahavidyalaya, Jalandhar. My hobbies include dancing, singing, reading, and exploring new things. I recently completed my internships in 2020. I was also a grand finalist winner of National Toykathon 2021. I have relevant workplace skills, management skills, and I come to you for guidance. I want to go foreign on a study visa. I am doing my undergrad in physics, so I want to ask you for a master's in a foreign. Please guide me. हाँ, सच जिताना 50-50 लगी है ना? इंक्वायरी दे रहे थे, ले नहीं रहे। बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा था मैम मेरे को ना कराओ, और उन्होंने किया, इसलिए इनको लिए 2 छोड़। गुड आफ्टरनून मम्मा, मैं कॉलेज से आई हूँ अभी एंड एक न्यूज़ है मेरे पास। हमारे कॉलेज में ट्रिप जा रही है साइंस सिटी में एंड मेरे को यहाँ पे जाना है।
यहाँ पे जब मैं जाऊँगी तो मेरे को काफ़ी सारा चीज़ें सीखने को मिलेंगी साइंस के रिलेटेड। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं एंड मेरी बहुत ही ज़्यादा इच्छा है कि मैं भी यहाँ पे जाऊँ और नई चीज़ें सीखूँ, इससे मेरी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप क्या मुझे जाने की परमिशन देंगे मम्मा? गुड आफ्टरनून मम्मा। मम्मा आज मेरे कॉलेज में ट्रिप जा रही है। गुड आफ्टरनून मम्मा। मम्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਟ੍ਰਿਪ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। तो ऐसे होता है ना? नहीं तो कैसे होता है? और मम्मी ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ? मम्मी का मूड पापा तक ते लड़ाई तो नहीं हुई मम्मी की आज? ओए तू तो नहीं कुछ किया सीगा? ऐसे होता है ना? सारी चीटिंग कर दिया। मम्मा यार, मम्मा मेरे कॉलेज में ट्रिप जा रही है, मेरे को जाना है मम्मा यार प्लीज। पहली बार ट्रिप जा रही है और मेरे को बहुत ज़्यादा जाने की इच्छा है मम्मा, प्लीज मेरे को जाना है यार, मना मत करना यार मम्मा प्लीज। थैंक यू। हेलो मैम, लाइसेंस तो है पर मेरे को ना इंश्योरेंस वगैरह नहीं है क्योंकि मैं कभी एक्टिवा लैके नहीं आई, अज फर्स्ट टाइम मैनू लोड़ पई आ मैम, प्लीज इस बार माफ कर दो, अगे तो नहीं इदा होंगी। क्या किया इन्होंने? हाँ, ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, चलान होने लगा था इनका, तो लग गया ना पता आपको? पापा आपको पता है जैसे मैंने अभी बैचलर्स कर ली अपनी, तो मुझे अभी और एक्सपीरियंस करने के लिए मुंबई जाना है। तो आप हर बार हर चीज़ के लिए मना कर देते हो, बट इस बार मुझे पक्का ही जाना है, मुझे नहीं पता, और अगर आपने नहीं मानी तो मैं चली जाऊँगी, सीधी सी जो बात है। और मैं पैसे भी नहीं मांगूंगी आपसे, भाग जाऊँगी, सीधी सी जो बात है। और फिर मैं ले लूँगी, मम्मी से पैसे ले लूँगी, पर मैं आपको बस बता रही हूँ कि मुझे जाना है, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और माननी ही पड़ेगी क्योंकि मुझे जाना है बस। ये ना सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और ये घर चले जा रही है वीडियो। ऊंची बोलो थोड़ा, कुछ सुनाई कम देता। सिचुएशन तो हमारी लाइफ में बच्चों अलग अलग सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमें पता नहीं होता हमें कैसे रिएक्ट करना है। ऐसा क्यों होता है? लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हम श्योर नहीं होते, है ना? आप सब मंदिर जाते हो? गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च जाते हो? ऐसा कोई बच्चा है जो रोज जाता है? प्लीज खड़े हो नाम से, फटाफट। क्यों जाते हो मंदिर या गुरुद्वारा, जहां भी जाते हो? फटाफट बताओ। प्रे करने के लिए। किसको? गॉड को। और एनीबडी एल्स? थैंक यू। हाँ जी, सभी नहीं जाते, ओके। तो रोज अपने घर के मंदिर में कुछ ना कुछ करते होंगे। आपको कैसे पता वहां गॉड रहते हैं? सच्ची में देखा है आपने कभी किसी को? वहां कोई गॉड आए ऐसे अष्टभुजाधारी ऐसे खड़े हो जाए, कुछ होता है? कहां से आवाज आती है? हाँ, हमारे अंदर के दिल से। क्यों आती है? क्योंकि जब हम इतने से थे तब से मम्मी पापा दादी दादा चाचा चाची क्या कहते हैं? भगवान की पूजा करो, भगवान
मंदिर में रहते थे, कहते हैं ना, तो वो आपके दिल में बस गया ना, ऐसे ही होता है। जब अभी यहाँ आना था, ऐसे कौन कौन से जो बच्चे यहाँ 6 बच्चे आए थे, वो उनमें से कौन सा ऐसा बच्चा था जो बहुत डर गया? हाँ जी बिल्कुल, आप। और कोई था? बाकी सब कॉन्फिडेंट थे, आप आना चाहते थे पर आए नहीं, है ना? है ना? क्यों? क्योंकि हमें लगा कि हम वहां जाएंगे पता नहीं क्या करा देंगे। यही था एग्जैक्टली। हम कोई भी काम तब अच्छे से नहीं करते हैं जब हम उसके लिए श्योर नहीं होते। मैंने यहाँ पे टॉपिक्स दिए, मैंने इनमें से एक पार्टिसिपेंट को एक टॉपिक दिया। शी सेड मैम मैनू ना दियो प्लीज, मैनू दूजा दे दियो, बिकॉज शी वॉज नॉट श्योर ऑफ। क्योंकि उसके अंदर से अगर मैं चेंज ना करती तो क्या होता? कॉन्फिडेंस पे नहीं खेलना, एक शब्द को छाड़ दो, नथिंग, इट इज नथिंग। अंदर से आवाज नहीं आनी थी, जो हमारे अंदर से वो भगवान की आवाज आती है ना, वो आवाज क्यों आती है? क्योंकि हमें वो बिलीव है, हमें खुद पे बिलीव है कि वहां पे भगवान है। आप कॉलेज ही पढ़ने क्यों आते हो? कहीं और क्यों नहीं जाते? What is self confidence? कोई बता सकता है? और वो बच्चा जिसने बिल्कुल नहीं बताया, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी, आप फेस पीछे मत करो, आपसे नहीं पूछूंगी। हाँ जी, कॉन्फिडेंस क्या होता है? मैम ने ना 2 लेक्चर ऑफ दे देने हैं अगर आप अच्छा पार्टिसिपेट करोगे, और अगर नहीं करोगे ना तो संडे भी लगवाएंगे। जल्दी बताओ क्या होता है कॉन्फिडेंस? मैम आई कैन डू इट, विश्वास। Confidence is actually a skill that you can develop if you can't imagine how that could be possible now. आप वहां से उठ के यहां तक आए ना? ये क्या था? एक कदम आपने आगे रखा कॉन्फिडेंस की तरफ। इसका मतलब आप उसको हासिल करना चाहते हो। जरूरी नहीं कि कॉन्फिडेंस आज हमारे में है, नहीं है। शायद आज जो बच्चे बहुत बोल रहे हैं वो कल बिल्कुल चुप हो जाए, वो यहां से आवाज आनी चाहिए। सो लेट्स लर्न हाउ वी कैन वर्क टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एज यू कैन सी द स्लाइड, पैशन। क्या होता है पैशन? जुनून। आप सबने अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स लिखी थी ना? तो इसमें से ऐसी कोई स्ट्रेंथ है जो आपकी आपका पैशन है? राइट योर पैशन। यू हैव 30 seconds, अपना पैशन लिखो। रिकॉर्ड करना। कुकिंग, dietitian. What is your education? You are in? ओके, सो आपका ये पैशन है। ये आपको कब से पता था कि ये आपका पैशन है? कब किया था? थर्ड में। ओके, तो कुकिंग आप कब से कर रहे हो? लॉकडाउन को सबने करी ना, सूजी मैदा सारा सृष्टि से खत्म करने पे आ गए थे, है ना? ऐसे ही था ना? हमें काफी जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते थे हमारे न्यूट्रिशन के रिलेटेड, है ना, तो
मैं आपकी क्लाइंट बनने वाली हूँ, तो दिख के लग रहा हूँ ना, मतलब देख लो मैडम सेहतमंद है, मैडम पतले होना है, न्यूट्रिशनिस्ट आने वाली है अपकमिंग. ओके, तो यू हैव स्टार्टेड वर्किंग, you found this passion when you were into lockdown. You discovered it. Thank you so much. हाँ जी, anybody else? वो किसी का पैशन नहीं हैगा कोई? मोटरसाइकिल? हाँ जी. Yes, yes, blue dye. Ma'am, I want to develop ideas related to medicine that will help others in the future. What is your education? Ma'am, I'm doing BSc Biochemistry. Biochemistry. And when did you develop this? Ma'am, I had this idea ever since I was in 9th. In ninth. What made you discover this? Ma'am, my parents always said that being a doctor or being someone in healthcare is the best thing one can do for others. We don't really believe in God and things. We believe that one should do good things for others, and that itself is a form of happiness and good things. By this, किसी के पेरेंट्स यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हैं? किसी का कोई पेरेंट हो जो हेल्थ डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में या किसी में काम करता हो? क्या करते बेटे आपके पापा? वो पीछे फिजियोथेरेपिस्ट. आपके एक और ने हैंड रेज किया था. हॉस्पिटल में क्या है? डॉक्टर. इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो? आपको पता है हम सब खड़े क्यों हैं यहाँ पे आज? क्यों खड़े हैं? देखो वो यहाँ नहीं है, बट क्या हम उनके लिए क्लैप कर सकते हैं? ऐसी वाली क्लैप. जो उन्होंने हमारे लिए किया है ना थ्रू आउट 1.5 साल, वैसे तो हमेशा करते हैं, बट जो उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता. हेल्थ वर्कर्स, police officers, army officers go throughout, they do, and they deserve shukran at extreme level. तो हमें इतनी धीरे से आवाज में, you know, this is a privilege being a doctor. चाहे किसी के पेरेंट्स ने एक क्लास 4 उसमें भी काम किया है ना, हेल्थ वर्कर, उन्होंने भी इक्वली बेटे अपने डिवोशन दिए. तो हमें प्राउडली ये बात सोचनी चाहिए और इस चीज़ के लिए इसको रेलिश करना चाहिए. अच्छा, अक्सर मैं आपको एक और बात बताती हूँ. अक्सर मेरे पास बच्चे इंटरव्यूज के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं, मैं पूछती हूँ बेटे फादर क्या करते हैं? तो बोलेंगे मैम लेबर करते हैं, लेबर, ऐसे बोलते हैं. तो मम्मी क्या करते हैं? मैम घर में काम करते हैं. ऐसे तो बताते ही नहीं. आई डोंट say that anybody of it's about anybody of you, but usually कुछ लोगों के पेरेंट्स इस फील्ड से होते हैं, बट उसके बावजूद भी पेरेंट्स बच्चे को कितना पुल करते हैं कि वो आगे जाके पढ़ सके. तो जब भी अपने पेरेंट के बारे में बताओ, प्राउडली बताओ. कैसे बताओ? My father is working as a labor and he is managing to make me study in such an esteemed institute. और वो चाहते हैं कि मैं पढ़ूं और आगे जाऊं. थोड़ी देर में रितेश सर जरूर आपको एक एग्जाम्पल देंगे. उनके पास लाइव एग्जाम्पल है फॉर दैट टाइल बॉय. ही विल शेयर. आपको लगे कि आज मैंने ये दवाई नहीं खाई है तो मेरे को समझ नहीं आया. अपना पैशन, यू नीड टू नो योर पैशन. व्हाट इज योर पैशन? मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या एक दिन में कोई डॉक्टर बन जाता है? मेरे सर्कल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. अगर मेरा बेटा 7.5 साल का है तो वो हमसे बड़े हैं 5-5, 7-7, 10-10 साल. उनका बच्चा भी मेरे बराबर है या हमारे से छोटा है, बिकॉज उन्होंने अपनी एजुकेशन में वो टाइम डेवलप किया. बट दे वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, from their school time. So how you develop your passion? By giving time. आप बोलो मुझे ना मेकअप आर्टिस्ट बनना है, राइट? बट मैं क्या रोज मेकअप करके देखती हूँ? क्या मैंने कोई नई लर्निंग करी? मुझे सिंगर बनना है,
क्या मैं रोज रियाज करती हूँ? चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, मैंने उसके लिए क्या एफर्ट किया? मुझे एक अच्छी टीचर बनना है। ओहो, मैं पढ़ के मुंडा डॉक्टर बन जाना है, 10 साल बाद चलो 50,000 रुपया तनख्वाह तो मिल जाओ। ऐसे ना, ऐसे होता है। हम क्यों यहाँ पे कॉलेज में आके पढ़ रहे हैं? चलो पहले +2 कर ली, अब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर घर वाले यहाँ तो रिश्ता देख लेंगे, यहाँ कहीं जॉब कर लेंगे। यही होगा, यही होता है। तो इसको कैसे डेवलप करना है अपने अंदर? कैसे? By proper time management and setting the priorities. देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम मैनेजमेंट ना आज तक कोई कर ही नहीं पाया, जितने मर्जी सेशन दे दो। एंड बीइंग फीमेल्स, अष्टभुजाधारी, आई ऑलवेज से फीमेल्स आर अष्टभुजाधारी, बट स्टिल मैनेजिंग एवरीथिंग, they are not able to manage themselves. I am not able to manage myself. See, I am not able to manage my weight. And it's a very big truth. You can't do everything, but you have to do that one thing that actually gives you sleepless nights. ओहो, ये कैसे रह गया? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रील्स बनाते हैं ना? ओ यार, आज मैं रील नहीं बनाई कोई, ऐसे होता ना। मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ, ओ बुआ बस ही मुझे फोन आता है, मेरी ना आज रील्स रह गई, को फिल्टर नहीं लग रहा, कैसे बनाऊं? ऐसे करते हो? नींद नहीं आई यार, फोटो नहीं खींची कोई। पैशन नहीं है। पैशन वो है जिसके लिए, जिसको पाने के लिए आप रोज 1 मिनट से लेकर अनगिनत मिनट अपने देते हैं। सो व्हाट्स योर पैशन? सबने लिखा है? पक्का? हाउ टू आइडेंटिफाई पैशन विल कम विद सर, बट आपने लिखा है? You will identify your passion. Note it down, and we will come back someday and we will check on this. मैम रोज चेक करोगे कि आपको उसको वैलिडेट करवाना है, तो उस पर्सन से करवाना है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, या फिर वैसा कोई पर्सन आपके पास अवेलेबल है। जरूरी नहीं जो सोर्स आपके सामने आस-पास बिल्कुल पास है वो सही हो। इट्स नॉट राइट। अगर आप कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में हो, जो तो टीचर आपको ट्रेन कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे, बट उससे जो पैशन है ना, पैशन वो कॉलेज में नहीं लिमिटेड रहेगा, वो बाहर जाके देखेगा। ओके, जलंधर में फेमस है दिव्या मेकओवर्स, अमित मेकओवर्स, है ना? क्या करो, उसको फॉलो करते हो? ऐसे होता है? फॉलो करो, देखो क्या करते हैं। यूट्यूब इज फुल ऑफ थिंग्स, सारा कुछ टीचर्स ने, हमने आपके अंदर, हम सिर्फ डोर ओपन कर सकते हैं आपके लिए। आपको वो जो सर ने ढक्कन खुलवाया ना, वो आपको खोलना है, राइट? सो हाउ विल यू प्रैक्टिस? मिनिमम हाउ मच टाइम you will give for your passion? 1 minute बस। गाना गाना सिर्फ 1 मिनट। You will give minimum 30 minutes for your passion. Start from 5 minutes from today. आज हमने एक मिरर एक्टिविटी करी। सबके घर में शीशा है? आज से आप सब अपने पास खड़े होंगे मिरर के आगे, अपनी इंट्रोडक्शन से लेकर दुनिया की कोई भी सिचुएशन आ जाए उसके ऊपर बात करोगे, अपनी आंखों के साथ आंखें मिलाकर। सामने सामने करणवीर यहाँ खड़ी है, करणवीर है ना यहाँ पे कोई? करणवीर खड़ी है, बट सामने कौन है? दुनिया, जिसको हमने, बच्चों कॉन्फिडेंस होता कब आता है? जब हम श्योर होते हैं। प्लीज, जब हम श्योर होते हैं, अंदर से आवाज आती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? मेडिसिन आप कहते हो सर मेरा ना पेट खराब है, बहुत मैंने कुछ गलत खा लिया था, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है?
ये दवाई ले लो, देख लेना अगर आराम आ जाए तो मुझे बता देना। आप दवाई खाओगे? हाँ? जिसने यस बोला उसने क्यों बोला, जिसने नो बोला उसने क्यों बोला? आपने गलत खाया ना, तो आजकल गैस्ट्राइटिस बहुत वायरल है, तो आपको वो हो गया। आप दवाई खाओगे? अभी भी कह रहे हो क्यों खाओगे? आप ना आए हो, अच्छा आपका पेट दुख रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है आपको शायद ना, आपने ना वो तला हुआ खा लिया कुछ, शायद। देख लो, ये वाली दवाई खा के देखते हैं, इससे आराम आता है आपको। खाओगे? ओके, यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, मैंने दवाई लिख दी, ये खा लेना। मीट मी आफ्टर 5 days इफ रिक्वायर्ड। खाओगे? तो जब आप अपना इलाज नहीं ऐसे डॉक्टर के पास कराते हो, तो फिर हम ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस कम है? आपका असाइनमेंट पूरा नहीं है, आपकी लाइफ की बात करते हैं। मैम ने आपको होमवर्क दिया, आपका असाइनमेंट पूरा ही नहीं है, आप कहते हो यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं मैम को फेस करूँ। रादर देन लाइंग, मेकिंग अप थिंग्स, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ हर, मैम आई एम सॉरी, मैंने ये नहीं किया, बट आई विल, प्लीज गिव मी दिस मच टाइम, आई विल कंप्लीट इट। चीजें बड़ी सिंपल और सॉर्टेड हो जाएगी। हो सकता है मैम आपको आगे से डांटे, कहीं कुछ भी, बट जो अंदर से आवाज आएगी ना, ये वाली, ये आपको नींद देगी कम से कम, आपको भी और मैम को भी। ठीक है? सो यू विल प्रैक्टिस फॉर आएगी वॉइस ऑफ इंडिया में कब जीतूंगी। मैं तो रोज मेकअप करती हूँ, पर मुझे तो कोई मेरे से मेकअप करवा ही नहीं रहा। फिर क्या होगा? क्या चाहिए? तपस्या, पेशेंस। मैंने ना आज रात लगा के पूरा सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, बट मुझे तो रिजल्ट अभी चाहिए, मैं फर्स्ट आनी चाहिए। क्या फर्स्ट आओगे? क्लास में फर्स्ट कौन आता है आपकी क्लास में? कौन आता है फर्स्ट? आप? करणवीर छाई हुई है, तो सारा साल पढ़ते हो कि कभी कभी पढ़ते हो? अच्छा, ऐसे बच्चे भी होते हैं, रोज पढ़ते नहीं हो? एक बच्चे ने यहाँ बोला था मैं रोज बहुत पढ़ती हूँ, आपने बोला था, क्या करते हो रोज? हम जो डेली टास्क होते हैं हम कोशिश करते हैं रेगुलरली करें कंप्लीट। कोशिश करते हो, पक्का नहीं होता। लेकिन फिर ट्राई हार्ड, कभी कभी हो जाता है, कभी ट्राई ना कोई शब्द नहीं होता, इट्स ईदर यू डू इट और यू डोंट डू इट। जो बीच वाले रास्ते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। सो सेकंड टास्क, यू विल नॉट ट्राई, यू विल डू इट। ओके? क्या करोगे? यू विल। फर्स्ट टास्क क्या था? सेकेंड टास्क क्या है? प्रैक्टिस। थर्ड टास्क? पेशेंस। कि एकेडमी में तो सारे वहाँ पे बॉयज़ हैं और वो फर्स्ट फीमेल है, तो क्या ये सिचुएशन, उन्होंने बोला कि आज की बात, पहले की बात, तो क्या आज ऐसे होता? 100% ऐसे नहीं होता। क्या आज आपके पास आज भी ऐसी सिचुएशंस नहीं आती जिसमें आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है? क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ वॉक कर रही हूँ, मतलब ये क्या है? कौन है नो वाला? क्योंकि आप मम्मा पापा के घर रहते हो। That's the point. सेम उसने किया,
बात तब भी वही थी, बात आज भी वही है। बात तब भी वही थी और बात आज भी वही है कि यहां अफेक्ट होता है, यहां अफेक्ट होता है कि नहीं होता। सिचुएशन आज भी सेम है। आप घर पे लेट आओगे, आज भी यू आर आंसरेबल। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, आज भी यू आर आंसरेबल। एंड इक्वली आजकल बॉयज भी आंसरेबल है, ऐसा नहीं है। बॉयज पे ज्यादा ऐसे मम्मी पापा आजकल गाड़ियों में ट्रैकर लगा के रखते हैं, पता है आपको ये बात? दिस इज अ न्यू ट्रेंड। क्लैप फॉर योर सेल्फ गर्ल्स। बॉयज की गाड़ियों में ट्रैकर लगते हैं आजकल, उनके फादर्स लगवाते हैं। गाड़ी दे देते हैं तो ट्रैकर लगा देते हैं, जाओ बेटे घूम, कोई बात नहीं। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है यहाँ पे कोई कंप्यूटर साइंस बच्चा? तेरी पूजा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। अपना सहारा खुद बनो, अपने लिए खड़े हो, जो करना है एक बार के लिए कर दो। तो क्या करोगे? कर हर मैदान फतेह। क्या करोगे? आवाज नहीं आई, मुझे आई नहीं आवाज। कर हर मैदान फतेह। आवाज किसकी ऊंची है? मेरी ऊंची है अभी भी। चलो 1 2 3। 1 2 3। Clap for yourself. I'll hand over to sir now for the next session. अपना पेपर और पेन आपके पास रखिए। कभी किसी पार्टी में गए हो, रिलेटिव्स के पास गए हो और आपको इग्नोर कर दिया गया हो, हुआ? मतलब ऐसा हुआ है कि आपको डिसरिस्पेक्ट लगी हो, क्लास में ही हो, चलो फ्रेंड्स बैठे हैं तो आपको वो खाना खा रहे हैं लेकिन आपको नहीं बुला रहे। हाँ, किसी मैरिज में गए हो, वो सारे रिलेटिव्स वहां पे बैठे हैं, आप साइड में बैठे हो, मेरा कम ही मेरे काम आया। हाँ, तब क्या फील हुआ? कैसा फील हुआ? हाँ, एनीवन? डिसरिस्पेक्ट फील हुआ। और देखो यार, ऐसे बात नहीं बनी। मैं इसको 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ इफ यू वांट। अगर रिस्पॉन्स आएगा तो बेस्ट आउटपुट निकलेगा। आई वॉन्ट सीरियस रिस्पॉन्स, क्योंकि ये आपके लिए है, आप इन्वॉल्व नहीं होगे तो मेरा यहाँ पे बोलने का कोई फायदा नहीं है। वी आर इन ट्रेनिंग, आई एम नॉट अ स्पीकर, मैं यहाँ पे स्पीच देने के लिए नहीं आया हूँ। सो प्लीज बी विद मी। आर यू रेडी? यस सर। अच्छा, जब भी मैं हेलो बोलूँ तो क्या बोलोगे? जब हाय बोलूँ? ओके। तो कैसा फील हुआ? कोई एक्सप्लेन करेगा? एक ने बोला डिसरिस्पेक्ट, और थोड़ा इसको ब्रीफ थोड़ा करेगा भी। सैड होता है, ऑकवर्ड फील हुआ। मोरओवर गुस्सा हो रहा है, आगे से इनकी शादी में नहीं आऊंगी, है ना, इनके कोई फंक्शन में नहीं आऊंगी, मैं तो इनको बुलाऊंगी नहीं, अनफॉलो कर दूंगी। ऐसे होता है? बार नहीं छेड़ना। पक्का? बट हैव यू पीपल रियलाइज कि वो इस तरह का रिएक्ट करने का टाइम था? आपको कोई इग्नोर कर रहा है और आप ये रिएक्ट कर रहे हो कि मैं इसको अनफॉलो कर दूं, या आपको ये लग रहा है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। इज दैट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन? क्या करना चाहिए? सिचुएशन को समझना चाहिए। मेरे रिलेटिव मेरे को नहीं बुला रहे,
आपको नहीं लगता कि आपकी वैल्यू क्या है? आपको डिटरमाइन करना चाहिए आपकी यूटिलिटी क्या है। अच्छा सपोज करो आपका कोई फ्रेंड आता है, उसने अपना स्टार्टअप शुरू करा, अभी 1-2 साल पहले स्टार्टअप शुरू करा था, देन नाउ दैट स्टार्टअप इज वर्थ ऑफ ₹3,000 करोड़। अभी वो बंदा भी वो सेम मैरिज में आया, क्या उसके साथ भी ऐसा होगा? उसको इग्नोर किया जाएगा? अच्छा कोई IAS बन गया, अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगा हुआ है, वो भी आया उस मैरिज में, उसके साथ ऐसा होगा? So this is about your utility. आपके पास क्या है सोसाइटी को देने के लिए? सोसाइटी विल गिव यू बैक अकॉर्डिंगली। फ्रेंड्स बनते हैं ना, वो स्कूल में बनते हैं, जब आपको ये नहीं होता कि मेरे कोई काम आए, तब दिमाग में ये नहीं होता कि ये मेरे काम आए। आधी रात को मैं फोन करूंगा तो ये गाड़ी लेके आ जाएगा हॉस्पिटल जाने के लिए। अब कंसिडरेशन ये होता है कि अच्छा ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसके काम आऊंगा और वो मेरे काम है। इज दैट क्लियर? ऐसा ही होता है? यूटिलिटी पे कैसे काम करें? यूटिलिटी कैसे बढ़ाई जाए? कैसे बढ़ाई जाए? हार्ड वर्क करके और दूसरों की हेल्प करके। यूटिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं दूसरों की हेल्प करके? यस, पैशन को फॉलो करके। सॉरी, इस पे बाद में आएंगे, इस पे कोई भी डिस्कस। यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स आपका सोसाइटी में क्या यूज किया जा सकता है, आप किस लेवल तक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो सोसाइटी में। जैसे सपोज मैम का बहुत अच्छा बिजनेस है, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी है इनकी, लेकिन फिर भी ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। शी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग, ट्रेनिंग से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। कुछ ट्रेनिंग्स तो ऐसी होती हैं जिसमें पूरी रात भी जागना पड़ता है। लीडरशिप की कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो जोन लेवल की होती हैं, उसमें पूरा पूरा दिन पूरा पूरा रात लग जाता है। ये क्यों कर रहे हैं? यूटिलिटी बढ़ाने के लिए। इनका प्रोस्पेक्ट इतना वाइड है कि मैं सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर रही हूं। और यू नो, दुनिया को चलाने वाले बस 2% बंदे हैं। उन 2% में से कॉमन चीजें यही होती है। आप में से किसी बंदे ने या कोई भी ABC बंदे ने 99% के साथ ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया, अब अच्छा जॉब मिल गया, उसके बाद देन व्हाट? जॉब के बाद सॉरी अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड भी हो गए। मैं बोलता हूँ IAS क्लियर कर लिया, उसके बाद अभी तो IAS बन गए, अभी स्किल्स क्या? अभी तो यूटिलिटी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। उसके बाद क्या? इट इज अबाउट यूअरसेल्फ। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रहा। आप IAS बन गए, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, प्राइम मिनिस्टर के साथ आप लगे हुए हैं, उनके एडवाइजर बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर 25 बार दिन में फोन करता है, भैया ये कैसे करना है, ये क्या करना है, ये पॉलिसीज कैसे डिजाइन करनी है। आपको पता है हमारी पॉलिसीज कौन डिजाइन करता है? पता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो लीडरशिप उसको एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद क्या है?
अच्छा एक बात बताओ, आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे या आपकी फैमिली में होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर डूइंग वंडर्स। दे ऑलरेडी सेट द स्टैंडर्ड ऑफ लाइक बिजनेस में, बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, मार्केट में स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है, लेकिन वो एजुकेशन नहीं है उनके पास। अच्छा बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके पास एजुकेशन है, पीएचडी करा हुआ है, बट फिर भी जॉब नहीं मिल रहा उनको। है ऐसे? क्या रीजन है इसका? एग्जैक्टली, वेरी वेल सर। यू एक चॉकलेट ले आ जाओ। वो रिलेशनशिप की फिलॉसफी को समझ चुका है। Someone said I failed to manage the relationships. आप अभी में से किसी ने बोला था, वो थॉट प्रोसेस उसका इतना डेवलप हो चुका है। आपको ना नॉर्मली सोसाइटी में 2-3 तरह के बंदे हैं, और हमने उनमें से कैसा बनना। पहले तो ये पैसा मिलेगा, ये बोलेंगे आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को एक अर्निंग आ रहा है, दैट्स इट, इसके बाहर में नहीं जा सकता। दे पीपल कंसिडर देमसेल्फ दे आर द नॉकर्स। जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एजुकेशन ले रहे हो जॉब के लिए, नौकर बनने के लिए नहीं करते। नेवर कंसिडर योर सेल्फ कि मैं नौकर हूं किसी का। आपकी डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाएगी। आपका जो रेगुलर रूटीन है टेक्निकली वट एवर यू आर डूइंग, उसके अलावा आप अपने स्किल्स पे कैसे काम कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकाल रहे हो। Have to reading. हमारे कॉर्पोरेट में एक बहुत पुरानी कोट है, रिच हैबिट विल लीड यूअर रिच लाइफ, पुअर हैबिट विल लीड यूअर, यू विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। शॉर्ट बेसिकली इज ए टेक्निक जो अभी मैम ने करवाया आपको, कॉन्फिडेंस के बेसिस के ऊपर पूरा प्रोसेस रहा वो सेशन का। SWOT इज लाइक कि उसको और आप सर्जिकल कैसे कर सकते, अपने आप को और रिफाइन कैसे कर सकते हो, अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे डिसाइड कर सकते हो। SWOT स्ट्रेंथ, आगे क्या है, आगे क्या है, एंड थ्रेट्स। आप लोगों ने स्ट्रेंथ लिखी थी, कितनी स्ट्रेंथ लिखी थी? अब इसको 5 कर देते हैं, 2 और ऐड कर दो, एंड यू हैव 20 सेकेंड्स व्हेनेवर वी विल प्लान टू कम। तो उसके बाद फिर इस पे डिटेल्स पे एक सेशन रखेंगे। तो स्ट्रेंथ आपने अपने बेसिस के ऊपर इसको 1 या 2 स्ट्रेंथ को फाइनलाइज करना है 5 में से, जो आपको लगता है कि दीज आर द बेस्ट स्ट्रेंथ्स एंड यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको लगता है इस दुनिया में आपसे ऊपर उसमें कोई नहीं। क्लियर? देन वी विल वर्क ऑन टू पर्सनैलिटी है, उसमें से निकल के आए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कहते हैं हम शक्ति। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। वो 9 दिन क्या प्रोसेस हुआ। You all are the symbolism of Shakti. आप इनका अंश हो, and you must know वो 9 दिन क्या हुआ।
ओके, कोई और? हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा फटाफट कर लो प्लीज। एनीवन? जब वॉर स्टार्ट हुआ, दोनों आर्मी के बीच लगभग 12 दिन वॉर चला। वो नवरात्र से पहले की बात है। तब तक रावण जो था वो अभी तक ग्राउंड में, बैटल ग्राउंड में अभी तक आए नहीं थे। जिस दिन रावण बैटल ग्राउंड में आए तो जो लॉर्ड रामा की जो आर्मी थी, देर तो लॉर्ड रामा सेड कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, हम लड़ नहीं पा रहे थे, हम वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। देन जो उनके जो टीम थी, दे सेड कि नहीं सर ऐसा नहीं है, दिन होता है, आज उनका दिन था इसलिए ऐसा हो गया। बट लॉर्ड रामा रिफ्यूज्ड, नहीं। देन आत्म मंथन करा उन्होंने। तो देन फ्रॉम डे फर्स्ट, फ्रॉम डे नेक्स्ट, लॉर्ड रामा स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ भगवती। जैसे मैंने बोला कि इस बॉडी के अंदर इंसेंट्रिक कुछ एक मेडिटेशन का प्रोसेस होता है, उसको मैं एक सेकंड में आपको अभी डिफाइन कर देता हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा है, टाइम कम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ ताकि पिक्चर थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। ये आंखों के नीचे जो एरिया होता है इसको बोलते हैं आंख। ये मेडिटेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आंखों के नीचे अगर बात करें, पूरा बॉडी जो होता है इसको बोलते हैं अंड, और यहाँ तक होता है पिंड, और यहाँ पर जो दोनों आंखों के बीच में दैट इज ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के ऊपर एक प्रोसेस होता है दैट इज त्रिकुटी। कॉन्शियस आपका पैरों से उठकर यहाँ तक आ जाता है तो ब्रह्मांड में पहुंच जाते हो। ब्रह्मांड के बाद फिर कॉन्शियस यहाँ पे आ जाता है त्रिकुटी में। इस प्रोसेस में जो आपके श्वास होते हैं वो रुक जाते हैं, प्राण जो होते हैं वो चिताकाक्ष में यहाँ पे रुक जाते हैं, और बंदा बिना प्राण के, बिना श्वास के कई सालों तक इस तरह से वर्शिप कर सकता है। और लॉर्ड रामा स्टार्टेड द प्रोसेस। त्रिकुटी में गए, भगवती को प्रकट करा, और पास में अपने 108 कमल के फूल रखे उनको मनाने के लिए। भगवान धरती पे आए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ यू। जामवंत जी ने, जो कमांडर थे आर्मी के उनकी, उन्होंने बहुत मना करा, नहीं सर ऐसा नहीं है, वो दिन होता है, लेकिन ही रिफ्यूज, नहीं। उनको पता है कि अहमियत क्या है, शक्ति। दिस इज द रियल स्ट्रेंथ एंड यू पीपल आर सिंबोलिज्म ऑफ शक्ति। तो जब शक्ति प्रकट हुई त्रिकुटी में, लास्ट में एक जो पुष्प था, जो एक फ्लावर था जिसको भेंट करना था शक्ति को, वो परीक्षा लेने के लिए लॉर्ड रामा की, वो फ्लावर जो पुष्प था वो बोली थी कि मेरा पुत्र दो कमल के नैनों वाला, तो ये दो आंखें इस तरह से मेरी कमल के फूल हो गए हैं, तो एक आंख में निकाल के आपको डिवोट कर रहा हूं। वो तीर लेके आते हैं इस तरह से, जब यहां पे लेके आते हैं तो तभी दुर्गा प्रकट हो जाती है। उसके बाद जो दशम दिन आता है, जिसको हम दशहरा बोलते हैं, रावण का अंत हुआ। Shall we move further? भी आपको देखनी पड़ेगी। जैसे पहले दो चीजें थी, टक के साथ करो, अपने लिए नहीं करना। गोल सेट कभी अपने लिए नहीं करना, गोल सेट सोसाइटी के लिए करना है।
इस कंट्री के लिए करना है, इस यूनिवर्स के लिए करना है, then these things will pay you back. इतना देंगी, you can't imagine. अगर आप अपने लिए गोल सेट करोगे, अपने को सेल्फ सेंट्रिक होकर रखोगे गोल, तो अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड रहेंगी। जब राइट ब्रदर्स इन्वेंशन कर रहे थे प्लेन का, तो आपको पता लगेगा, इसको राइट ब्रदर्स का एक ऑटोबायोग्राफी आता है, तो उसको पढ़ो तो उसमें उसने मेंशन करा हुआ है कि जब हम प्रोसेस में थे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी प्रोसेस में थी। 50,000 मिलियन उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट गेव देम, मेरे को चाहिए, बट यहां पे प्रोस्पेक्ट का डिफरेंस है। कैसे आगे आए ना एग्जैक्टली, उसको इन्वॉल्व कैसे करना है, इस तरह से इन्वॉल्व। महाभारत में 2 एग्जांपल हैं, अर्जुन और कर्ण। कर्ण इज मोर पावरफुल, अर्जुन से बड़ा भाई है, मोर पावरफुल है, लेकिन वो सेल्फ स्टीम के लिए युद्ध कर रहा है। अर्जुन सोसाइटी के लिए युद्ध कर रहा है। जो हमारे परिवार के साथ हुआ वो उस देश की जनसंख्या के साथ ना हो, उस देश के पॉपुलेशन के साथ हो, ऐसा ना। उनका जो गोल है दैट इज सोसाइटी ओरिएंटेड। और कर्ण का ये डिफाइन करा है कृष्ण ने। जब कर्ण का अंतिम समय आ रहा है तो कृष्ण ने इसको पूरी तरह से वाइडर प्रोस्पेक्ट बनाना। पैशन को भी तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपका वाइडर प्रोस्पेक्ट होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है, लेकिन वाइडर प्रोस्पेक्टिव के साथ, खुद पे सेल्फ सेंट्रिक होके नहीं करना। इज दैट क्लियर? वो कल को फेल ना होता है, क्योंकि उन चीजों पे बहुत देयर इज नो थ्रेट। यू आर इन द बेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और दुनिया में एग्जाम्पल्स पड़ी है। आप एक टॉपिक उठा के देखो, आप कुछ भी उसका रिसर्च करो, मिल सकता है। यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और जब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध में खड़े हो तो थ्रेट तो कोई है ही नहीं। इतने न्यूरॉन्स 24 घंटे में इस वक्त आपकी लाइफ में आप में बन रहे हैं, ये पूरी लाइफ में नहीं बनेंगे। यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट। जितनी डिस्ट्रैक्शंस है सब खत्म कर दो। एंशिएंट इंडिया का थियोलॉजिकल T2 बेसिक फॉर्मूला है जिसपे कहते हैं तपस्या और त्याग। तपस्या, वॉट एवर यू आर डूइंग द प्रोसेस, अब कुछ भी जो कर रहे हो, वो कहता है ना कन्वर गरेवाल, सुना किसी ने कन्वर गरेवाल? रोम रोम विच वास सज्जन दा, है ना? सो दैट रोम रोम विच केड़ा वास, केड़ा सज्जन? जो गोल सेट करा है आपने, जो प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ। जैसे मैं आपने बोला कि अगर पढ़ाई का ही गोल है, एकेडमिकली कुछ सेट करा हुआ है गोल, यस यहाँ पे रीच करना है, तो अगर एक दिन पढ़ नहीं हुआ तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए। इस लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं बोला एकेडमिक के ही ऊपर आप गोल सेट करो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट। Distractions are the destruction of life. आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे डिस्ट्रैक्शन के साथ। दुनिया में ना 3 पर्सनालिटीज हैं जिनकी इज्जत नहीं हो। मेरे टीचर मेरे को बताते हैं
he usually said कि 3 पर्सनैलिटीज की इज्जत नहीं होती और उनको माननी भी नहीं चाहिए. फर्स्ट इज भिखारी. अगर वो ईगो लेके जाएगा तो भीख नहीं मिलेगी, मांग ही नहीं पाएगा. आप और मैं मांग सकते नहीं, बहुत बहादुरी का काम नहीं मांग सकते. दूसरा सन्यासी, जिसने सब कुछ छोड़ ही दिया, तो फिर सेल्फ एस्टीम क्या रहेगी. एंड लास्ट इज स्टूडेंट्स. आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है, सीरियसली. कोई एक ऑटोबायोग्राफी उठा के पढ़ लो, किसी की पढ़ लो, गांधी की पढ़ लो, किसी की भी पढ़ लो जो आपको पसंद है. इलॉन मस्क की पढ़ लो, यू विल रियलाइज. आपने बोला था ना, जिसने सोल्जर एंड जस्ट डू इट. थैंक यू सो मच. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, वो वाली स्टार्टिंग मत करो. कैसे सीखते हो? देखते हो, ऑब्जर्व करते हो. रोज की जिंदगी का काम. हमारे घर में टेस्ट कैसे बनता है, मम्मा तड़का ऐसे लगाती है. अच्छा, कभी आप बोल भी दोगे नहीं यार प्याज तो नहीं डालती मेरी मम्मा बीच में. कैसे पता चलता है? बिकॉज जाने अनजाने में आप देख लेते हो, काम करते हो नहीं करते हो. तो वो कैसे आती है चीजें? When you और सिर्फ आंखें ऑब्जर्व नहीं करती, कुछ चीजें हम फील करते हैं. प्याज की स्मेल भी आ जाती है, कट रहा है, ऑलरेडी आपको बताते होंगे. और ये लाइफ लॉन्ग, कोई ग्रंथ कुछ भी खोल लो, उसमें सब में लिखा है. तो इसकी बढ़िया कैसे रहेगा जब आप इसको फॉलो करोगे. कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप उसको ओवरकम कैसे करोगे? कितने लोगों का बिजनेस चल पड़ा कोविड टाइम में, है ना? टिकटॉक, रील्स, कितने लोगों ने अपने फॉलोअर्स बना लिए एंड दे आर अर्निंग सो गुड. दिस इज अ न्यू बिजनेस, है ना? तो ऐसा आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, जिसकी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट एवरी डे विल एड ऑन ग्रेट थिंग्स. तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे फोकस करती है. जो हम आपको आज सब्जेक्ट करा रहे हैं, कभी हम भी उनके स्टूडेंट थे. हमें सोचा कि हम जो हमें मिला फ्री में, क्योंकि फ्री कुछ नहीं होता, तो हम भी आगे उसको बांटें. ठीक है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिटी वर्क, हर तरह का, लॉयंस, रोटरी, आपने सब सुना है. लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, ये लोग अलग तरह का काम करते हैं. हमारा JCI में ये रहता है कि हम इंडिविजुअली आपको इतना स्किल कर देते हैं कि आप जिंदगी के किसी भी कोने में चले जाएं, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, तो आप सब वहां पे जाकर इसका पार्ट भी बन सकते हैं और अपने आप के लिए भी अपने पैरों पे स्टैंड रहकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं. तो आप इसके बारे में ऑनलाइन देख सकते हैं, हमारे थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं. आप अपने कॉलेज में कभी भी कोई वर्कशॉप करवाना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल. हमारे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, मैम के साथ आई कंटैक्ट, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच वंडरफुल ऑडियंस. एंड जो कोई भूल हो, उसको कहते हैं ना, भूल चूक समझ के माफ कर देना. वी आर रियली सॉरी समहाउ इफ वी हर्ट यू, and we really expect to see you smiling always. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for joining us, for sparing your very valuable time and giving. These are pearls of wisdom which you have given them, and they will be always useful to them somehow, somewhere in their lives, and truly serve some kind of a purpose. We extend a very heartful, very warm vote of thanks to both of you. Thank you so much. Thank you, girls. Thank you, everyone. Thank you all the teachers in charges for having such a great contribution in the program. Thank you, everyone. आपने फिंगर नहीं रखे हुए आगे?